नाजरीन आदाब, उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अब्दुल वसी। चलिए सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र। In exercise of the powers conferred by Class 1 of Article 180 of the Constitution of India, the Governor of Telangana has appointed Sri Akbaruddin Owaisi, a member of the 3rd Telangana Legislative Assembly, to perform duties of the Speaker of the Telangana Legislative Assembly until a member of the said Legislative Assembly is chosen to be the Speaker under Article 178 of the Constitution of India. Sri Akbaruddin Owaisi will now take oath before Honorable Governor Madam. May I now request the Honorable Governor Madam to kindly administer the oath. मैं अकबरुद्दीन ओवैसी, जिसे कानून साज असेंबली का रुकन मुंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ लेता हूं कि मैं कानून की रोह से राइज दस्तूर हिंद का वफादार और फरमाबरदार रहूंगा, हिंदुस्तान के इख्तिदार आला और इसकी सालिमियत को बरकरार रखूंगा और इस फर्ज मनसबी को मुझे तख्वीस किया जाने वाला है पूरी दियानतदारी से अंजाम दूंगा। रैतु बंधु की शुरुआत कब होगी? अनाज की खरीदी का कब होगा आगाज? एमएलए हरीश राव ने किया हुकूमत से पुरजोर मुतालबा। एमएलसी के ओहदों से बीआरएस के एमएलए ने दिया इस्तीफा। काउंसिल चेयरमैन गुत्ता सुखिंदर रेड्डी की जानिब से तमाम इस्तीफे मंजूर। साबिक वज़ीर आला केसीआर की सेहत अब मुस्तकम, जल्द सेहतयाबी के लिए चाहने वालों ने की पूजा। एमआईएम के सरबराह असदुद्दीन अवैसी ने भी किया अफसोस का इजहार, केसीआर की आजिलाना सेहत के लिए की दुआ। और हुकूमत की जानिब से तेलंगाना रियासत में मुफ्त बस सर्विस का हुआ आगाज, मुसाफिरीन शनाख्ती कार्ड दिखाना लाजमी। नाज़रीन, अब खबरें तफसील से। तेलंगाना कानून साज असम्बली का सेशन शुरू हो चुका है। प्रोटेम्प्ट स्पीकर अकबरुद्दीन अवैसी ने बीआरएस के एमएलएस को हलफ दिलवाया। बीआरएस के तमाम अराकीन असम्बली को एक एक करके उन्होंने हलफ दिलवाया। असम्बली में आज की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद आइंदा सेशन को 14 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। All the honorable members are requested to make it convenient to attend the event. Now the House is adjourned to meet again at 10:30 a.m. on Thursday, the 14th of December 2023. శ్రీనివాస్ రెడ్డి పోచారం అనే నేను, తన్నీరు హరీష్ రావు అనే నేను శాసనసభ్యునిగా ఎన్నికైనందున శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం, విధేయత చూపుతానని, తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ అనే నేను, గంగుల కమలాకర్ అనే నేను, గుంటగండ్ల జగదీష్ రెడ్డి అనే నేను స్వీకరించబోయే కర్తవ్యాన్ని శ్రద్ధాశక్తులతో నిర్వహిస్తానని పవిత్ర హృదయంతో ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను. పట్లల సబిత ఇంద్రారెడ్డి అనే నేను, వాగిటి సునీతా లక్ష్మారెడ్డి అనే నేను, చామకూర మల్లారెడ్డి అనే నేను స్వీకరించబోయే కర్తవ్యాన్ని శ్రద్ధాశక్తులతో నిర్వహిస్తానని దైవసాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. ఆరకపూడి గాంధీ అనే నేను, I, Bandari Lakshmareddy, had been elected member of Legislative Assembly, do swear in the name of God that I will bear truthfully and allegiance to the Constitution of India by the law established. బండ్ల కృష్ణమూర్తి అనే నేను, కోవలక్ష్మి అను నేను, I, G. Lasinandita Sayana, having been elected a member of the Legislative Assembly. यादव अनिल कुमार। इंतखाबात के बाद तेलंगाना कानून साज असम्बली की कार्रवाई आज से शुरू हो चुकी है। प्रोटेम्प्ट स्पीकर अकबरुद्दीन अवैसी ने हालिया इंतखाबात में कामयाब अराकीन असम्बली को आज हलफ दिलवाया। पहले सीएम रेवंत रेड्डी ने एमएलए की हैसियत से हलफ लिया, जिसके बाद दूसरे कई उज़रा ने भी हलफ लेने की इतलात है। శాసనసభ సభ్యునిగా ఎన్నిక అయినందున శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నేను స్వీకరించబోయే కర్తవ్యాన్ని శ్రద్ధాశక్తులతో నిర్వహిస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. I, Bhatti Vikramarka Mallu, having been elected a member of the Legislative Assembly, శాసనసభ సభ్యురాలిగా ఎన్నికైనందున శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల I, శిలారపు దామోదర రాజనరసింహ, తుద్దిల్ల శ్రీధర్ బాబు అనే నేను స్వీకరించబోయే కర్తవ్యాన్ని శ్రద్ధాశక్తులతో నిర్వహిస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను.
दूसरी जन्म तेलंगाना के वज़रा को महकमे और कलमदान तफवीज़ किए गए हैं। डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार को बराए मालियात, कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी सड़कों और R&B, उत्तम कुमार रेड्डी सीवर सप्लाई और आपाशी के लिए, सीतक्का पंचायत राज के लिए, दामोदर राज नरसिम्हा बराए सेहत, कोंडा सुरेखा बराए जंगलात, श्रीधर बाबू के लिए महकमे IT, इंडस्ट्रीज़ और असम्बली उमूर, पुन्नम प्रभाकर बराए ट्रांसपोर्ट BC वेलफेयर डिपार्टमेंट, तुमला नागेश्वर राव महकमे ज़राअत, पंगुलेट्टी श्रीनिवास रेड्डी महकमे इतलात, जुपल्ली कृष्णा राव को एक्साइज एंड टूरिज़्म के कलमदान सौंपे गए हैं। पार्टी वर्किंग सदर KTR ने BRS सरबराह KCR के सर्जरी के पेश नज़र असम्बली में मुनक़िदा मेंबरान असम्बली की हलफबरदारी तकरीब में शिरकत नहीं की। KTR ने कानून साज असम्बली के सेक्रेटरी से कहा है कि वह हलफ लेने के लिए एक और दिन का वक़्त दे। KTR ने आज तेलंगाना भवन में मुनक़िदा BRS LP मीटिंग में शिरकत भी नहीं की क्योंकि वो KCR के साथ अस्पताल में थे। KTR ने कहा कि वो KCR की तबीयत बेहतर होते ही किसी दूसरे रोज़ MLA के तौर पर हलफ लेंगे। पल्ला राजेश्वर रेड्डी, कड़ियम श्रीहरी, पाडी कौशिक रेड्डी MLC ओहदों से इस्तीफ़ा दे जाने की इतलात है। कानून साज कौंसिल के लिए गुत्ता सुकेंद्र रेड्डी इस्तीफ़े के नामों को पेश किया। उन्होंने कहा कि MLA के ओहदों से इस्तीफ़ा दिया गया है जिन्होंने कानून साज असम्बली इंतखाबात में MLA की हैसियत से कामयाबी हासिल की थी। कौंसिल के चेयरमैन गुत्ता सुकेंद्र रेड्डी ने फौरी तौर पर इन इस्तीफ़ों को कबूल भी कर लिया। नाजरीन, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अब लेते हैं मुख्तसर सा वक्फा। BRS MLA हरीश राव ने कहा कि तमाम किसान ऋतु बंधु का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत से सवाल किया कि वो किसानों को 15,000 रुपये की सरमायाकारी इमदाद आखिर कब शुरू करेंगे। हरीश राव ने कहा कि तमाम किसान रियासती हुकूमत के फैसले के लिए काफ़ी बेचैन नज़र आ रहे हैं। BRS के अरकान असम्बली ने गन पार्क में वाक़ शोधा के मीनार पर ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने शोधा की कुर्बानियों को याद करते हुए फूल निछावर करके खराज अक़ीदत पेशी। बाद असम्बली इजलास में शिरकत के लिए बस में रवाना हुए। डॉक्टरों ने बताया है कि सर्जरी के बाद साबिक़ वज़ीर आला KCR की सेहत मुस्तकम है। व्हीलचेयर वाकर की मदद से कुछ देर तक पैदल भी चलाया गया। दूसरी जानिब डॉक्टरों ने इन्हें 8 हफ्ते आराम का मशवरा दिया है। कल शाम यशोदा अस्पताल के डॉक्टरों ने KCR के कूल्हे की तब्दीली के सर्जरी की कामयाबी के साथ सर्जरी की थी। MIM के सरबराह और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके BRS सरबराह KCR की जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश की। यशोदा अस्पताल में KCR के अरकान ख़ानदान को सेहत की हालत के बारे में दरियाफ्त किया। असदुद्दीन ओवैसी ने KCR की आजिलाना सेहतयाबी के लिए दुआ की। इसके अलावा रामोजी राव ने कहा है कि यह अफसोसनाक है कि BRS के सरबराह KCR नीचे गिरकर ज़ख्मी हो गए हैं। उन्होंने BRS के वर्किंग सदर साबिक़ वज़ीर KTR से सेहत से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल किए। उन्होंने इस बात पर उम्मीद का इजहार करते हुए बताया है कि वो जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। रामोजी राव ने अपने एक बयान में कहा है कि KCR ने अपनी ज़ाती और सियासी ज़िंदगी में बहुत से मुश्किलात का हिम्मत का साथ सामना किया। रामोजी राव ने साबिक़ वज़ीर आला KCR की जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश ज़ाहिर की। दूसरी जानिब यूपी के साबिक़ वज़ीर आला अखिलेश यादव ने भी BRS सरबराह KCR की सेहत के बारे में दरियाफ्त किए। BRS के कारगुजार सदर व KTR ने उन्होंने फ़ोन किया और इनसे सेहत से मुताल्लिक़ वाक़फ़ियत हासिल की। अखिलेश यादव ने साबिक़ वज़ीर KCR की जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश की है। CM रेवंत रेड्डी ने असम्बली में महालक्ष्मी मुफ्त बस स्कीम का आज आगाज़ किया। इस स्कीम के ज़रिए लड़कियों और ख़वातीन को रियासत भर में पल्ले वेलगू और मेट्रो एक्सप्रेस में मुफ्त सफ़र की सहूलत दस्तियाब हो जाएगी। मुसाफिरीन को यह हिदायत दी गई है कि वो महकमे RTC को आधार कार्ड की तरह कोई ना कोई शनाख्ती कार्ड ज़रूर दिखाएँ। జరుగుతోంది ఇప్పుడు మహాలక్ష్మి ఉచిత ప్రయాణ టికెట్ ఆవిష్కరించి మన మహాలక్ష్ముల చేతికి అందించారు ముఖ్యమంత్రి గారు। कैंसर के इलाज के लिए अब जदीद तरीन टेक्नोलॉजी दस्तियाब करवाने के लिए यशोदा अस्पताल में एक हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आलमी मियार का बोन मेरो ट्रांसप्लांट सेंटर का आगाज़ कर दिया गया है। हाईटेक सिटी में काकतिया टाटा मेडिकल सेंटर के डायरेक्टर प्रोफेसर मोमिन चंडी, नवी मुंबई के अलावा अस्पताल के डिप्टी डायरेक्टर प्रोफेसर नवीन खेत्री ने बोन मेरो सिस्टम सेल ट्रांसप्लांटेशन सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने कहा कि यशोदा अस्पताल हर किस्म के कैंसर के इलाज के लिए अच्छी तिब्बी खिदमात फराहम कर रहा है।
नाजरीन, उर्दू खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। अब्दुल वसी को इजाज़त दीजिए। उर्दू और तेलुगु के ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए टी न्यूज़ तेलंगाना की दिल की धड़कन। आदाब।